A very good day to everyone. I'm Geeta, PGT English, KVO of Medak. This is a special presentation on the occasion of India's National Sports Day, celebrated on 29th August every year in honor of Major Dhyan Chand, the legendary hockey player. On this occasion, first of all, I'd like to wish and greet our respected Chairman, VMC, Shri Alok Prasad, General Manager of Ordnance Factory Medak. Send greetings to our Honorable Deputy Commissioner, KVS Hyderabad, Shri Shashindran, and to our learned Assistant Commissioner, Srimati JSV Lakshmivan. I also wish a very happy and healthy day to our Principal, Shri NSS Prasad, to all my learned teachers, and to the beloved students of Kendriya Vidyalaya Ordnance Factory. As today is National Sports Day, it's time to reflect, to think about what India has achieved in the world of sport. It is a fact that India is slowly emerging as a sporting nation, thanks to the efforts and achievements of great sportspersons like P.T. Usha, P.V. Sindhu, Sachin Tendulkar, and many more such great examples. But the inspirational life and achievements of the great hockey legend, Major Dhyan Chand, is a shining model, the first example for all youngsters of India to carry forward the legacy of excellence and sportsman spirit. Major Dhyan Chand, born in a very simple family in India, rose to great heights at the field of hockey. He won 3 Olympic golds for India in hockey. His skills were exemplary. He played for India and also captained in India in 1928, 32 and 36, when there wasn't much of facilities or support for sport in India. Not only that, he was also a very patriotic soldier of the Indian Army. So for all his achievements and inspirational voyage, his life, he was honored with Padma Bhushan by the Government of India. So it's indeed today a golden opportunity for all young athletes and sportspersons that there are schemes, scholarships, events and amenities to practice, develop fitness and develop their sporting skills and excel in any sport they want. It is hoped that today's youngsters may pick up that example, that India may reach greater heights in international sports arena, following the example of the great wizard of hockey, Major Dhyan Chand, and develop fitness and bring laurels to our nation. Jai Hind. On this occasion, we are having a small presentation after this. We have 2 videos, one about the life and achievements of Major Dhyan Chand. Next, an inspirational talk by a famous sports person. And then the sports quiz for all classes 5 to 12, which will be posted in all the groups. And we have already announced about painting and drawing competition based on Sports Day and life of Major Dhyan Chand, and presentations for teachers. So I request everyone to participate with enthusiasm. We have 2 more days time. Tomorrow by Monday, I want all these presentations to be submitted so that it can be they can be assessed and certificates will be given to all. So I wish everyone a very happy Sports Day today, happy National Sports Day today, and follow the example of Major Dhyan Chand. Thank you. हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी, उसमें मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा लिया जाएगा। उन्हें उनके अद्भुत खेल के लिए हॉकी का जादूगर या द विजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वे हॉकी में वही स्थान रखते हैं जो क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन का है। अपने खेल के अलावा मेजर ध्यानचंद एक अन्य किस्से के लिए भी याद किए जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान उन्होंने हिटलर का एक विशेष प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की सच्चाई और वो कौन सा मौका था जब ऐसा हुआ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वे कुशवाहा मौर्य परिवार के थे। उनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। साथ ही वे भी हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। ध्यानचंद के 2 भाई थे, मूल सिंह एवं रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद की ही तरह अच्छी हॉकी खेला करते थे। 1922 में 16 साल की उम्र में
ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया और उन्हें यह खेल पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटोर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान दिया। वहीं पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर यह कह दिया था कि एक दिन यह खिलाड़ी पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्हीं ने ध्यानचंद को चंद नाम दिया। इसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल कर दिए थे, जिसमें से 10 तो ध्यानचंद ने ही किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 में भारत विजयी रहा, 1 में हार मिली तथा 2 ड्रॉ हुए। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए, जिनमें से ध्यानचंद ने ही 100 गोल मारे थे। यहाँ से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया। साल 1927 में लंदन के फोकस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें से ध्यानचंद ने 36 गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, 1932 में लॉस एंजलिस में और 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में। ओलंपिक शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले भारतीय टीम और जर्मनी ने 17 जुलाई 1936 को एक अभ्यास मैच खेला था। इस मैच में भारत के पास अली दारा, अहमद खान और ध्यानचंद जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। बावजूद इसके ये मैच भारत जर्मनी से नहीं जीत सका। इस मुकाबले में जर्मनी ने भारत के खिलाफ 4 गोल किए, वहीं भारत सिर्फ 1 ही गोल कर पाया। ओलंपिक से ठीक पहले भारतीय टीम का इस तरह हारना कप्तान ध्यानचंद के लिए चिंता का विषय था। कहते हैं कि इस हार के बाद वे पूरी रात नहीं सो पाए। उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ओलंपिक में भारत के सिर से हॉकी में बादशाहत का ताज ना छिन जाए। हालांकि सुबह होते ही उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे की रणनीति बनाई। जल्द ही वे अपनी पूरी टीम को ओलंपिक के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में सफल रहे। ध्यानचंद की अगुवाई में टीम एकदम नई और तरोताजा लग रही थी। तेजी से वक्त बीता और ओलंपिक भी आ गया। 5 अगस्त 1936 को भारतीय टीम को हंगरी का सामना करना था। दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो भारतीय खिलाड़ियों में एक अलग किस्म की ही ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपने पहले ही मैच में हंगरी को 4 गोल से पीट दिया। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 7-0 से यूएस और 9-0 से जापान को हराने के बाद वे सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। वहां भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात देकर दुनिया को यह बता दिया था कि वे गोल्ड लेकर ही जाएंगे। इस मुकाबले के असली हीरो ध्यानचंद ही थे। उनकी अगुवाई में भारत फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा था। भारतीय टीम की तर्ज पर जर्मनी भी अपने विजय रथ के साथ आगे बढ़ी और फाइनल तक पहुंच गई। जर्मनी का क्रूर तानाशाह हिटलर जर्मनी के प्रदर्शन से बहुत खुश था। उसने फाइनल मुकाबले के लिए पूरे जर्मनी को बदल डाला। स्टेडियम के आसपास के इलाकों में खास किस्म के इंतजाम किए गए। सभी को जर्मनी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंचने का आदेश दिया गया। हिटलर ने सुनिश्चित किया कि वो इस फाइनल मुकाबले में खुद भी मौजूद रहेगा। वो किसी भी कीमत पर जर्मनी को जीतते हुए देखना चाहता था। दूसरी तरफ ओलंपिक शुरू होने से पहले ही एक अभ्यास मैच में जर्मनी भारत को हरा चुका था, इसलिए उसके हौसले बुलंद थे। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहा था। हालांकि भारतीय टीम भी खुद को कमजोर मानकर नहीं चल रही थी। कप्तान ध्यानचंद समेत सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे। यूं तो भारत और जर्मनी को 14 अगस्त को एक दूसरे से भिड़ना था, पर ऐन मौके पर तेज बारिश ने सारा मामला खराब कर दिया। मैदान पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए मैच को टाल दिया गया। तय किया गया कि अब यह मुकाबला अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला जाएगा। मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ी थोड़ी चिंता में दिखे, पर जब वे मैदान पर उतरे तो उन्होंने तेवर बदल लिए। उन्हें पता था कि यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुकाबले के कुछ मिनट पहले कप्तान ध्यानचंद ने सभी खिलाड़ियों से बात की और उनमें नई जान फूंकने का काम किया। रेफरी के इशारे के साथ भारतीय टीम मैच को जीतने निकल पड़ी। पहले मिनट से ही जर्मनी के खिलाड़ियों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिसे उन्होंने अभ्यास मैच में बड़े अंतर से हराया था। मेजर ध्यानचंद तो कुछ इस तरह गेंद को अपनी हॉकी से लेकर दौड़ रहे थे जैसे मानो गेंद को उन्होंने हॉकी से चिपका कर रखा हो। देखते ही देखते भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए। मैच में एक पल ऐसा भी आया जब पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। भारतीय टीम जर्मनी को उसी के मैदान पर पीटकर विश्व विजेता बनने जा रही थी। जर्मन खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। वे सुस्त पड़ चुके थे।
इसी बीच भारतीय टीम ने अपना आखिरी गोल दागकर 8-1 के बड़े अंतर से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान पर मौजूद सभी की नजरें भारतीय टीम के ऊपर टिकी हुई थीं, खासकर कप्तान ध्यानचंद पर, जिन्होंने इस मुकाबले में अकेले 6 गोल दागकर हिटलर का जर्मनी को अपनी आंखों से जीतते हुए देखने का सपना तोड़ दिया था। सब लोग अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उनके अभिवादन में तालियां बजा रहे थे। ध्यानचंद को अपनी टीम पर गर्व था, क्योंकि उन्होंने अपने देश भारत की लाज रख ली थी। साथ ही भारत को ओलंपिक में एक और गोल्ड दिलवाया। इस हार के बाद पूरे स्टेडियम में शांति छा गई। सबकी नजरें हिटलर की तरफ थीं कि अब वो क्या करेगा। वो किसी भी कीमत पर यह मैच जीतने वाला था। लोगों को लग रहा था कि कहीं वो आग बबूला होकर तानाशाही का कोई नया उदाहरण न पेश कर दे, पर हिटलर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। हिटलर ध्यानचंद के खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वो जल्द से जल्द भारतीय टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद से मिलना चाहता था। तेजी से वो भारतीय टीम को सम्मान देने के लिए मंच पर पहुंचा और आगे बढ़ते हुए मेजर ध्यानचंद को पदक पहनाया। ध्यानचंद पुरस्कार लेकर जाने लगे तो उसने ध्यानचंद को टोकते हुए कहा, रुको। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए ध्यानचंद से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने इससे पहले तुम्हारे जैसा कोई भी खिलाड़ी नहीं देखा। तुम्हारे हाथों और स्टिक में जादू है। तुम हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो? मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूँ। इस पर हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। उस समय सेना का बहुत बड़ा पद था। ध्यानचंद हिटलर के प्रस्ताव को सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। फिर भी उन्होंने हिटलर से कहा, माफ करें, भारत मेरा देश है और मैं वहीं ठीक हूँ। भारत मेरी मातृभूमि है और मैं हमेशा भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर के शब्दों को सुनकर हिटलर उनसे और ज्यादा प्रभावित हुए। इस तरह मेजर ध्यानचंद भारत के लिए गोल्ड जीतने के साथ साथ हिटलर का दिल जीतने में भी कामयाब रहे। हिटलर ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया था। हिटलर जैसे तानाशाह के सामने भी भारत को सर्वोपरि मानने वाले ध्यानचंद के जज्बे को हम सलाम करते हैं। वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन खेल जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद को साल 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही बीच बीच में उन्हें भारत रत्न देने की चर्चा भी जोरों पर थी। Well, I would like to keep it very simple. I play cricket and all my devotion is towards cricket, and I know one thing, whatever is around me is because of cricket and not because of anything else. The kind of person I am, throughout my life I've never tried to change myself. I've always kept it simple, be honest, devote yourself to something and then be focused on that. So I think it's the ethics and the principles that really matter in life, and I've kept it really simple, so that has really helped me. Okay, if you were reborn as another cricketer, not Mani, who else you want to be? No, I should be given that option, and I would like to be born as MS Dhoni, because I'm really enjoying my life, whatever time I have spent, and hopefully if God gives me another chance, I would like to be the same person, born with the same parents at the same place. Oh, that is brilliant. A bit of advice here and there, because I've seen life more than you. I feel a lot of time you think it's too tough on you, and 24 hours is not really enough, but I feel if you have good time management, 24 hours is a lot. You can study, you can attend school, and you can play. And I feel sports is very important, because at times we get confused between quality and quantity. It's not always, studying 14 hours in a day is always not important. It may be just 6 to 8 hours, but it's the quality that really matters. We never take pressure, in the sense, we take pride in our performance. We don't always weigh it as quantity, as this is what we need to do. It's never about I, me, myself, whoever you talk to. So that's our strength.
तुम्हारे ख्याल में तुम्हें अच्छा यूज कर सकता है? क्या तुम्हारी क्या थिंकिंग है? नहीं, कप्तान वो हो जैसे धोनी जैसा, मार पड़ी चुप खड़ा हुआ। आपने उसको देख लिया, आप सारे कहते हैं वो लकी है, ऐसा, वो दलेर है भाई, वो लकी नहीं, वो दलेर है। वो डरता नहीं अपने एक्सपीरियंस करने से कि जी ये मैंने ट्राई करना है, जी मैंने ये ट्राई करना। और जब मार पड़ रही होती है और अच्छा भी होता है, वो पीछे खड़ा हो, चुप खड़ा होता है। बात है। जो उसने बात करनी ड्रेस रूम में करनी और ग्राउंड में उसने बैक करना, और कभी भी अपने फास्ट बॉलर को वो डोमिनेट नहीं करता। भाई आपने जाना है 5 आउट करके दीजिए, मुझे नहीं पता, बाकी आपका बॉल है, आपकी फील्ड है, आप कप्तान अपने आप के। More than that, I think it's a fact that we are representing our country, as a team, as an individual, we are representing our country, and there are not many people who get a chance to be in our place. Yes, we may get criticized a lot, but what we need to admit is, when we win, we get a lot of appreciation. But ultimately, what's important is whether you're doing well or you're not doing well. We can't forget the fact that we represent our country. Whatever we do on the field, ultimately it is pronounced at the Indian cricket team lost a game or won a game. So I think the real pleasure is in representing the country and trying to do something, where you can bring pride, for your country. And I feel we are fortunate enough to be in a position where we can proudly say, we represent 15 people, who are the best when it comes to playing cricket for India. Ultimately, it's the individuals that go on and they have to adapt, or they have to use their senses to see what really needs to be done. So I don't think it's a support staff. If you're indirectly hinting we need a coach and all of that, I think we had enough people in the support staff, to really take care of us. And also not to forget, the changes were made, and these guys, when they came in, we did really well in Australia, apart from the Tri-Series, the World Cup, and even the ODIs in England, we did well. So let's not have a very short time memory, over the long run. If you see their stats, I don't know whether the support staff stats really matters, but they have been really good. Namaskar and good morning, friends, my dear students, principal sir, teachers and all the staffs. Today we are celebrating National Sports Day, that is 29th August, in the memory of Major Dhyan Chand ji. He was a hockey wizard. He won 3 gold medals in Olympics for our nation, and we must take the inspiration from his life story, that is to be fit, to be loyal to our nation and give our best to our institution, our nation. And I thank our principal sir, our staff and my dear children, one and all, and wish you all once again a very happy National Sports Day. Namaskar, Jai Hind.